جب انسان بولتا ہے تو اپنا راز کھولتا ہے، مگر جب وہ خاموش رہتا ہے تو اپنی طاقت بناتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ تلوار ہے جو جذبات، نفس اور دنیا کے شور سے لڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے خاموش رہو۔ آج کی یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کہ خاموشی صرف الفاظ نہ بولنے کا نام نہیں، بلکہ ایک روحانی طاقت ہے۔ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ کس طرح خاموش رہ کر آپ مضبوط، پرسکون اور ناقابل شکست بن سکتے ہیں۔ خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ یہ ضبط ہے، یہ شعور کی علامت ہے۔ دنیا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ بولنے والا جیتتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر جیتنے والے وہ ہوتے ہیں جو بولتے نہیں، صرف کرتے ہیں، جو بولنے کے بجائے اپنے عمل سے جواب دیتے ہیں، جو شور کے درمیان بھی سکون میں رہتے ہیں۔ یہی اصل طاقت ہے، خاموشی کی طاقت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی عقل کی زینت ہے۔ یہ جملہ صرف اقوال زرین نہیں، یہ زندگی کا اصول ہے۔ جب تم خاموش رہتے ہو تم اپنی عقل کو بولنے دیتے ہو، جب تم بولنے لگتے ہو تم اپنی عقل کو روک دیتے ہو۔ یاد رکھو، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، ہر طنز، ہر الزام، ہر بحث میں بولنا ضروری نہیں۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لوگ کہیں گے تم ڈر گئے، لوگ کہیں گے تمہارے پاس جواب نہیں، لیکن تم جانتے ہو تمہارے پاس ضبط ہے، تمہارے پاس سکون ہے، اور وہ سکون، وہ وقار صرف ان کو ملتا ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں۔ تمہارے پاس ایک چوائس ہے، یا تو ہر آواز کا جواب دو اور تھک جاؤ، یا پھر خاموش رہو اور اپنی توانائی محفوظ رکھو۔ یہی فرق ہے کمزور اور مضبوط انسان میں۔ کمزور انسان اپنی خاموشی برداشت نہیں کر سکتا، وہ بول کر اپنی بے چینی کو نکالتا ہے، لیکن مضبوط انسان جانتا ہے کہ ہر بات کے پیچھے بولنا نقصان ہے۔ وہ اپنے اندر کے شور کو قابو کرتا ہے، وہ اندر سے جیتتا ہے۔ یاد رکھو، بولنے کے لیے ہمت نہیں چاہیے، خاموش رہنے کے لیے ضبط چاہیے۔ ضبط سب کے بس کی بات نہیں، اسی لیے خاموشی سب کی طاقت نہیں۔ کبھی تم نے دیکھا جب کوئی شخص تم پر غصہ کرتا ہے، تم کچھ نہ کہو، وہ اور بھڑک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری خاموشی اسے آئینہ دکھا رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی کمزوری میں بول رہا ہوتا ہے اور تم اپنے ضبط میں مضبوط ہو۔ یہی تو خاموشی کی اصل طاقت ہے۔ خاموش رہنا دنیا سے بھاگنا نہیں، یہ خود کو محفوظ رکھنا ہے، یہ اپنی عقل کو بچانا ہے، یہ اپنے نفس پر قابو پانے کا فن ہے۔ تمہیں بولنے کی جلدی ہے کیونکہ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن ایک دن تم سمجھو گے تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا، تمہیں بس خود کو ثابت کرنا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہاری خاموشی تمہارے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ تمہیں ان لوگوں سے نہیں لڑنا جو تمہیں نہیں سمجھتے، تمہیں صرف اپنی نیت، اپنی نیکی اور اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ یاد رکھو، بولنے والا ہر وقت نہیں جیتتا، کبھی کبھی جیتنے کے لیے خاموشی لازم ہے۔ جب تم بولتے ہو تم دوسروں کو طاقت دیتے ہو، جب تم خاموش رہتے ہو تم خود کو طاقت دیتے ہو۔ یہی فرق ہے بے وقار اور باوقار انسان میں، اور یہی وہ سبق ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سکھایا کہ جب تمہارا علم تمہارے بولنے سے زیادہ ہو تو تمہاری خاموشی تمہاری حفاظت کرے گی۔ تمہارے پاس اختیار ہے، تم طیش میں بول سکتے ہو یا ضبط میں خاموش رہ سکتے ہو۔ تم اپنی زبان سے رشتے توڑ سکتے ہو یا اپنی خاموشی سے انہیں محفوظ رکھ سکتے ہو۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ ہر لمحہ، ہر موقع تمہارے اندر ایک جنگ چلتی ہے، بولنے کی یا ضبط کرنے کی۔ اور یاد رکھو، یہ جنگ جیتنے والا ہی مضبوط انسان بنتا ہے۔ تمہیں لوگ غلط سمجھیں گے، تمہیں لوگ کمزور کہیں گے، لیکن تم جانتے ہو تمہارے اندر کیا چل رہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم اپنے جذبات کو روک رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے اندر ایک آندھی ہے، مگر تم نے اسے قید کر رکھا ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی طاقت ہے، یہی وہ خاموشی ہے جس کی تلوار سب سے تیز ہے۔ جب تم خاموش رہنا سیکھ جاتے ہو، دنیا تمہارے لیے بولنے لگتی ہے۔ لوگ تمہارے الفاظ نہیں، تمہارے کردار کو یاد رکھتے ہیں۔ جو خاموش رہتا ہے وہ غور کرتا ہے،
जो गौर करता है वो समझता है, और जो समझता है वो कभी हारता नहीं। यही सच है। खामोश रहना कमजोरी नहीं, ये वो ज़ब्त है जो तुम्हें दूसरों से बुलंद कर देता है। ये वो शऊर है जो तुम्हें दुनिया के शोर से आज़ाद करता है। ये वो वकार है जो तुम्हें खुद पर यकीन दिलाता है। कभी कभी तुम्हें बोलने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन खामोशी सब कुछ सिखा देती है। खामोशी तुम्हें बर्दाश्त सिखाती है, खामोशी तुम्हें सब्र सिखाती है, खामोशी तुम्हें वक्त का इंतज़ार करना सिखाती है। ये वो तरबियत है जो कोई उस्ताद नहीं दे सकता। याद रखो, बोलने वाला अक्सर पछताता है, लेकिन खामोश रहने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि उसने ज़ब्त किया, उसने सोचा, उसने इंतज़ार किया। यही वो लोग हैं जो ज़िंदगी में जीतते हैं। खामोश रहना सीखो, दुनिया खुद बोलेगी तुम्हारे लिए। ये जुमला सिर्फ एक कॉल नहीं, ये उसूल हयात है। जब तुम अपने अल्फाज पर कंट्रोल करते हो, अल्लाह तुम्हारे हालात पर कंट्रोल देता है। ये राज है सब्र का, ये राज है मजबूत ईमान का, ये राज है कामयाबी का। तुम्हें अपनी खामोशी पर यकीन रखना होगा। तुम्हें समझना होगा कि हर लफ्ज़ ज़रूरी नहीं, हर जवाब फ़ायदेमंद नहीं। कभी कभी खामोश रहकर तुम ज़्यादा बोल देते हो। और आखिर में याद रखो, जब तुम खामोशी को अपनाते हो, तुम अपने नफ्स पर काबू पाते हो। ये वो मुकाम है जहां इंसान आम नहीं रहता, वो रूहानी तौर पर बुलंद हो जाता है। क्योंकि खामोशी सिर्फ ज़बान का ज़ब्त नहीं, ये दिल का सुकून है, ये अक्ल की रोशनी है, ये ईमान की अलामत है। तुमने अपनी पहली तलवार उठा ली है, खामोशी। तुमने खुद को काबू में लेना शुरू कर दिया है, और यही पहला कदम है मजबूत इंसान बनने का। अब तुमने कमजोरी को ताकत में बदलना सीख लिया है, तुमने शोर को सुकून में बदलना सीख लिया है, तुमने रद्द अमल को ज़ब्त में बदलना सीख लिया है। तुमने अपनी खामोशी की तलवार निकाल ली है। अब अगला कदम है सोचने से पहले बोलना, क्योंकि अगला बाब तुम्हें यह सिखाएगा कि सोचने से पहले बोलना मजबूती की पहली निशानी है। चैप्टर 2, बोलने से पहले सोचना, मजबूती की पहली निशानी। बोलने से पहले सोचना, ये वो आदत है जो तुम्हें आम इंसान से अलग करती है। ये मजबूत लोगों की पहचान है। ये सब्र, शऊर और हिकमत की बुनियाद है। ज्यादातर लोग पहले बोलते हैं, बाद में पछताते हैं, मगर जो सोचकर बोलता है वो हमेशा जीतता है। यही फर्क है बेवकार और बावकार इंसान में। यही फर्क है जज्बाती और बाशऊर इंसान में। तुम्हारे पास एक चॉइस है, बोलने की जल्दी करो या समझने की आदत। जल्दी तुम्हें तोड़ देगी और सोच तुम्हें बना देगी। हर लफ्ज़ तुम्हारी शख्सियत की पहचान है। हर जुमला तुम्हारे अंदर के हाल का इजहार है। जो तुम बोलते हो वही तुम्हारा आईना है, तो क्यों ना ये आईना साफ रखा जाए। हजरत अली ने फरमाया, इंसान अपनी जबान के नीचे छिपा हुआ है, यानी जब तक तुम खामोश हो कोई तुम्हारी हकीकत नहीं जानता, लेकिन जैसे ही तुम बोलते हो तुम अपना असल जाहिर कर देते हो। सोच कर बोलो, क्योंकि एक लफ्ज इज्जत बना सकता है और एक लफ्ज सब कुछ खत्म कर सकता है। कभी कभी तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड की खामोशी बचा सकती है। 2 सेकंड जिनमें तुम गुस्से को रोक सकते हो। 2 सेकंड जिनमें तुम सोच सकते हो, क्या ये लफ्ज मुझे बुलंद करेगा या गिरा देगा? क्या ये बात मेरे वकार में इजाफा करेगी या नुकसान? यही असल जहानत है, बोलने से पहले सोचना। ये वो ज़ब्त है जो तुम्हें दूसरों से मुमताज बनाता है। तुम्हारी ज़बान तुम्हारे लिए या तो रहमत है या मुसीबत। यही ज़बान दुआ भी मांगती है, यही ज़बान दिल भी तोड़ती है। तुम तय करते हो इसे किस लिए इस्तेमाल करना है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना ही चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन याद रखो, खामोश रहकर सोचना कमज़ोरी नहीं, हिकमत है। जो हर लफ्ज़ तोल कर बोलता है वो कभी अपनी इज्जत नहीं खोता। गुस्से के वक्त बोलना सबसे खतरनाक अमल है, क्योंकि गुस्से में तुम बोलते नहीं, तुम अपने अंदर का जहर निकालते हो और वो जहर तुम्हारे ही खिलाफ चला जाता है। सोच कर बोलो। जब दिल भरा हो ज़बान बंद रखो। जब दिमाग गुस्से में हो खामोशी को तरजीह दो। यही ज़ब्त है, यही ताकत है। ये तुम्हारी तरबियत है,
ये तुम्हारा इम्तिहान है, ये तुम्हारा शऊर है। कभी तुमने महसूस किया, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर कम सुनते हैं, और जो कम सुनते हैं वो सच्चाई खो देते हैं। तुम सुनने की आदत डालो। बोलने से ज्यादा सुनने वाले हमेशा समझदार बनते हैं। तुम्हें हर बात पर राय नहीं देनी, तुम्हें हर मौके पर अपनी मौजूदगी साबित नहीं करनी, तुम्हें हर इल्जाम का जवाब नहीं देना। तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और किस लिए बोलना है। यही असल दानाई है, यही मजबूती की पहली निशानी। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा मुकद्दर बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो कि तुम क्या लिख रहे हो अपनी किस्मत में। क्या तुम शुक्रिया बोल रहे हो या शिकायत? क्या तुम उम्मीद बोल रहे हो या नफरत? क्या तुम सब्र बोल रहे हो या गुस्सा? तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे ख्यालों को जाहिर करते हैं और ख्याल तुम्हारी हकीकत बन जाते हैं। तो बेहतर है कि तुम हर लफ्ज़ से पहले खुद को जांचो। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकालता मगर उसके पास एक निगहबान मौजूद है जो उसे लिख लेता है। सूरत काफ आयत नंबर 18। ये आयत हमें याद दिलाती है, तुम्हारा हर लफ्ज़ गिना जा रहा है। तो सोचो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे खिलाफ गवाही दें या तुम्हारे हक में? यही फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास एक चॉइस है, हर लफ्ज़ को बोझ बनाना या बरकत बनाना। कभी कभी सोचना बोलने से ज्यादा बहादुरी है, क्योंकि सोचने के लिए सब्र चाहिए, सोचने के लिए अना को खामोश करना पड़ता है, और यह आसान नहीं। लेकिन अगर तुम इस ज़ब्त को सीख लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, रिश्ते बदल जाएंगे, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा। क्योंकि जो सोचकर बोलता है वो कभी नहीं टूटता, वो कभी अपनी इज्जत नहीं खोता, वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। हर बहस, हर लड़ाई, हर मुकाबले में याद रखो, जो पहले बोलता है वो अक्सर हारता है, क्योंकि वो अपने जज्बात के काबू में आ जाता है। लेकिन जो सोचता है, जो लम्हा रुक कर खामोशी को जगा देता है, वो खेल पलट देता है। ये जिंदगी का कानून है। गुस्से में बोलना नुकसान है, सोचकर बोलना ईमान है, खामोशी इख्तियार करना हिकमत है। तुम्हें बोलने की जल्दी क्यों है? क्योंकि तुम्हें सुना जाना है, क्योंकि तुम्हें तस्लीम किया जाना है। लेकिन याद रखो, तुम्हें लोगों से नहीं, अल्लाह से तस्लीम होना है। जो अल्लाह की खातिर खामोश रहता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है। जो ज़ब्त करता है, अल्लाह उसकी ज़बान में बरकत डाल देता है। ये वो वादा है जो कुरान के हर सफ़े में झलकता है। ये तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है। रोज़मर्रा की बातचीत में, गुस्से में, बहस में रुकना सीखो, सोचना सीखो, फिर बोलो। हर बार जब तुम बोलने से पहले सोचते हो, तुम अपने नफ्स पर जीत हासिल करते हो। हर बार जब तुम रद्द अमल के बजाय खामोशी चुनते हो, तुम अपनी रूह को मजबूत करते हो। यही कामयाबी है, यही तरबियत है, यही ईमान है। तुम्हें लोगों की बातों से ज़्यादा अपनी नीयत पर ध्यान देना है, क्योंकि नीयत ही अल्फाज का रुख तय करती है। अगर नीयत साफ हो तो अल्फाज खुद पाकीज़ा हो जाते हैं। बोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह बात मुझे अल्लाह के करीब करेगी? अगर जवाब नहीं तो मत बोलो। यही तुम्हारी हिफाजत है, यही तुम्हारा ज़ब्त है। याद रखो, तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे मुस्तकबिल का बीज हैं। गलत बीज बो दो तो फल कड़वा होगा, सोच कर बो दो तो फल मीठा होगा। हर लफ्ज़ एक दुआ है, हर लफ्ज़ एक इम्तिहान है। सोच कर बोलना इबादत है, क्योंकि ये तुम्हें अपने नफ्स पर काबू दिलाता है, ये तुम्हें अपनी अना से आज़ाद करता है, ये तुम्हें रूहानी तौर पर बुलंद करता है। अब तुम्हें आज से एक नया उसूल अपनाना है। पहले सोचो, फिर बोलो। ये तुम्हें शोर से निकालकर शऊर तक ले जाएगा, ये तुम्हें रद्द अमल से निकालकर ज़ब्त तक ले जाएगा, ये तुम्हें कमज़ोरी से निकालकर ताकत तक ले जाएगा। यही मजबूती की पहली निशानी है, यही खामोशी की बुनियाद है, यही कामयाब जिंदगी की समत है। अब तुमने सीख लिया, सोचना बोलने से ज़्यादा अहम है। अब तुम अपने अल्फाज के मालिक बन गए हो, ना कि गुलाम।
ये पहला कदम है शऊर की तरफ। अब वक्त है अगला कदम सीखने का, क्योंकि तुमने सीखा सोचना, अब तुम्हें सीखना है रद्द अमल को काबू करना। तुमने जबान पर जब्त माया, अब दिल पर जब्त पाने का वक्त है।